Hello everyone, welcome back to our channel, and in today's lecture we are going to explore the circular or the curvilinear motion, and these are based upon the circular motions. In the previous sections we learned about the linear motions and linear motion, in which we know about the some terminologies, that is the velocity, displacement, and the acceleration, and then their relationship. So in this lecture we are going to explore what is the angular displacement, what is the velocity, what is the angular acceleration, and then finally we know the equations for the linear and the angular motions, how they are be equal and be represented, and lastly the relation between the linear and the angular motions. So let's start with the introductions of the angular displacement. Okay, so circular motion is associated with the curved path. It's a curved path in which the body moves, in which the body will moves, or the movement of the body will be followed the curved or the circular path. As you can see in the figure, the tracking or the racing car will be associated or will follow the circular path. From the center it's at the radius denoted by the r, and in time t it will be change its position with the constant rate, that is the at uh, constant temperature. It will changes as the time changes, the position of the car will also be changes. Suppose if a car is at point A, then when it be at B point, the time taken will be followed, this path will be T, then it is called as the circular motions. Okay, now what is the angular displacement? So angular displacement is the when a particles or a body moves in a circular path, its angle of rotation, that is denoted by the theta here, denoted by the theta, is called the angular motion. Okay, so it varies as the time varies. So जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि जब भी आपकी बॉडी के जब आपकी बॉडी कोई सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगी, मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, और द मोशंस ऑफ अ बॉडी जो है वो आपका सर्कुलर पाथ पर होगा, देन द वी कॉल इट एज द सर्कुलर मोशन. और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका एक रेसिंग कार जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे, या आप बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रैक पे ये चलती हैं जब, तो उस वाले टाइम पर आपका सेंटर से जब ये पोजीशंस को चेंज करती रहेंगी एट टाइम टी, तो वहाँ पर जो सेंटर से इसका डिस्टेंसेस बन रहा होगा वो आपका कहलाएगा थीटा, एंड इट इज़ डिनोटेड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और इन अदर वर्ड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट can be says that the angle through which the point or a line has to be rotated on a specific direction without a fixed axis. यहाँ पे जो एक्सिस होती है ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है,
इसको जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है या तो इसको रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर जो इसकी यूनिट होगी बेसिकली यूनिट जो होगी या तो इसकी रेडियन होगी या फिर आप इसे इन द डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर होता है इस्तेमाल वो आपका रेडियन होता है। इसकी एग्जांपल है फॉर अ व्हील रोटेटेड ऑन अ हाफ टर्न इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी पाई रेडियन। ओके, now next move to the angular display velocity. So angular velocity will be the rate of change of angular displacement और displacement can be represented by the theta। और क्या होता है कि ये सेंटर से जितना भी ज़्यादा पाथ को फॉलो करेगा, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे जितना भी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी वो उसके आर्क से, ये जो पूरा होगा ये इसका आर्क होगा, सो विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रेट ऑफ चेंज कहलाएगा ये कहलाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। और आप ग्राफिकली या बोल सकते हो कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका ये सेंटर से मूव कर रहा है तो इसका जो डिस्टेंसेस है वो ज़ीरो से यहाँ तक का, जिसे हम आर कहते हैं यानी कि रेडियस, इसके सरफेस सरकमफ्रेंस पे जो बॉडी मूव करेगी तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डेल टी अपॉन डेल टी, और we can say that omega is equal to theta upon t, where theta is the angular displacement and t will represent the time। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। सो इट इज़ अ रेडियन पर सेकेंड। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारी गाड़ी या हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ वो कितना ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो आपका कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, वहीं पर अगर ये रेशियो आपका कम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी या आपका ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ स्लो मूव कर रहा है। इफ़ RB the radius of the circular path on which the particle is moving or the body is moving, the instantaneous velocity can be represented by V is equal to omega r। Since के यहाँ पर जो भी मूवमेंट हो रहा होता है फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स टू पार्टिकल ये बहुत ही नेग्लिजिबल के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो इसको हम एक लीनियर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लीनियरली अगर आप देखा जाएगा तो लीनियर मोशंस के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पे आपका दो तरीके की वेलोसिटी को हम देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, एक आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और एक आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ कम होंगी जब आपका पार्टिकल जो मूव कर रहा है सेम रेट से, यानी कि सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करे इन सेम टाइम। जैसे कि अगर आपकी बॉडी यहाँ पे ये मूव कर रही है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थीटा है अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का ए से बी तक का मूव करने पर ये 5 सेकंड ले रहा है, तो वही 5 सेकंड ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने में लेगा। ए से बी तक ये जो मूव करा इसने 5 सेकंड लिए, तो बी से सी तक आने के लिए भी ये 5 सेकंड ले, और फिर डी तक भी जाने के लिए ये अगर 5 सेकंड लेता है, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, अगर इनका आर्क इतना है यानी कि आर्क डिस्टेंस
सेम होगा और इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर होगा, तब आपका ये जो रोटेशन कहलाएगा, या आपका जो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये आपकी यूनिफॉर्म क्या होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाई जाएगी। ठीक है। वहीं पर अगर हमारा अनइक्वल ऑफ टाइम, जैसे कि मान लो कि ए इक्वल टू बी सी है बट इट्स नॉट इक्वल टू सी डी, तो ये आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 5 सेकंड के अंदर ए से बी तक, तो इन्होंने जो डिस्टेंस पहले किया था 5 सेकंड के अंदर, वही डिस्टेंस 5 सेकंड के अंदर बी टू सी किया, लेकिन ये 5 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, यानी कि आर्क डिस्टेंस इन्हें कवर करना चाहिए था सी डी पर, इन 5 सेकंड वो नहीं किया, तो ये कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन और नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। इट्स लाइक द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ की तरह है कि जब कम सेम डिस्टेंस को ये सेम वेलोसिटी के साथ, या आप बोल सकते हो कि सेम डिस्टेंस को सेम टाइम के अंदर ये कवर कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएंगी। और वहीं पे सेम डिस्टेंस तो अनइक्वल है लेकिन टाइम उतना ही लग रहा है, तो देन इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस को, ये डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर ये कवर कर रहे हैं, तब तो ये यूनिफॉर्म कहलाएंगे, यानी कि ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ये सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इन इक्वल टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो देन इट इज़ टर्म्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ओके, now let's move to the next portion, that is the angular acceleration. So it is the rate of change of angular velocity with respect to time. So it is represented by the angular velocity will be angular acceleration equal to the ratio of the angular velocity to the time, and represented by the alpha. Alpha is equal to omega divided by द टाइम। सो ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, एंड टाइम का भी पर सेकेंड, तो ये निकल कर आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो द ऐसा यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन इज द रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट डिस्क्राइब हाउ क्विकली द रोटेशनल स्पीड इज चेंजेस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंजेस हो रही है। और निकालने के लिए जैसे कि हमारे पास एक्सीलरेशन का होता है कि फाइनल एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय द 2। सो सिमिलरली ये यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा कि ओमेगा एट पॉइंट ए, यहाँ पे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ओमेगा 1 है। ओमेगा 1 इफ़ द इनिशियल angular velocity and at time t1, and omega 2 will be the final angular velocity, angular velocity यहाँ पे आप चाहो तो चेंज लिख सकते हो, डेल चेंज अपॉन चेंज इन टाइम इन टाइम t2, यानी कि एट पार्टिकल ए पे, ए पोजीशन पे जो है यहाँ पे ये थीटा होगा। एट पोजीशन ए पर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ओमेगा 1,
और टाइम t1 पर थी। यहीं पे ये जब पोजीशन b2 पर b पर आई तो यहाँ पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो ω2 हुई और t2 will be the time. So angular acceleration will be the rate of change of uh, angular velocity. So w2 ω2 minus ω1 divided by t2 t1. ठीक है, so it is the angular acceleration. So angular acceleration of a particles is uniform if the change of in angular velocity आर इक्वल। अगर एंगुलर वेलोसिटी आपकी इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ये आपका यूनिफॉर्म कहलाएगा, वरना एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये इसका उल्टा भी होगा। अगर इक्वली एंगुलर वेलोसिटी पजेस नहीं कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। और वहीं पर अगर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज uniform angular acceleration. I think it will be clear to you. Now the next topic is the relation between the linear and angular motion. So firstly, see here we have a figure in which the particles is moving along a circular path, and while it is at a position, ए पोजीशन पे इसका अगर क्या कहते हैं जैसे कि ω1 t1 है और बी पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ω2 t2 है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, डिस्टेंस is very small. तो जब ये L से M तक पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने मान लो कि जो लीन यहाँ पर ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, जो कि यहाँ पे बताया कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी किधर की तरफ है, उसके साथ ओमेगा रिप्रेजेंटेड है। आर बी द रेडियस of the circular path represented as in the figure. v is the linear velocity जो कि पार्टिकल m पर इन्होंने दिखा दी कि अगर ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा तो इसका वेलोसिटी विल बी द v, एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा है, विच शोज the particles is moved from A to B or particles is moving from L to M position, from L to M in time t. S will be the linear displacement in meter from L to M, and second lastly is the alpha, which is the angular acceleration of a particles, and A is the linear acceleration. सो इनके बीच में जो रिलेशन है वो पहला आपका ये है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो जो ड्राइव होकर आएगा वो आएगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ये आपको बताएगा कि भाई अगर आपको सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट
to the radius of a circular path. सेकेंड रिलेशन जो है वो है आपका एंगुलर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो सेकेंड रिलेशन इज बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंड लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ angular velocity to the radius of the circular path. Similarly, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेस वेलोसिटी टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. थर्ड वन इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर acceleration and distance linear acceleration. Okay, so it is be represented as angular acceleration is equal to the ratio of the linear acceleration to the radius of the circular path. So it is all about the relation between the linear and the angular motions. Thank you for watching, and please like and subscribe the channel and share with your beloved ones.